Bismillahirrahmanirrahim. Assalamu alaikum. I am Samina Khan, lecturer, Southern Business School, Institute of Southern Punjab, Multan. We are going to start our lecture of Introduction to Computers. This is lecture number 6. So, इस lecture में हम continue करेंगे अपने application software के topic को. The learning objectives of this lecture are: we have to discuss presentation software, database software, note-taking software, project management software, enterprise computing software, graphics and multimedia software, computer-aided design, video and audio editing software, software for home, personal and educational use, reference and educational software, and entertainment software. So ये हमारे इस lecture की learning objectives हैं. Starting with presentation software. Presentation software is application software that allows users to create real aids for presentations to communicate ideas, messages, and other information to a group. The presentation can be viewed as slides, sometimes called a slideshow, that are displayed on a large monitor or on a projection screen. Presentation software typically provides a variety of predefined presentation formats that define complementary colors for backgrounds, text, and graphical accents on the slides. Presentation software वो application software है जो आपको allow करता है कि आप real aids create करें, आपको allow करता है कि आप presentations develop करें, अपने आइडियाज, मैसेजेस और दूसरी इंफॉर्मेशन जब आपने ग्रुप्स को कम्युनिकेट करना होती है तो आप प्रेजेंटेशंस डेवलप करते हो, रियल एड्स डेवलप करते हो और प्रेजेंटेशन सॉफ्टवेयर आपको हेल्प करता है इन रियल एड्स को क्रिएट करने में. प्रेजेंटेशंस को आप देख सकते हो स्लाइड्स की फॉर्म में. समटाइम्स हम इसको स्लाइड शो कहते हैं जो आप लार्ज मॉनिटर या प्रोजेक्शन स्क्रीन पर डिस्प्ले कर रहे होते हो. प्रेजेंटेशन सॉफ्टवेयर में डिफरेंट प्रीडिफाइंड प्रेजेंटेशन फॉर्मेट्स होते हैं जो डिफाइन कर रहे होते हैं कॉम्प्लीमेंट्री कलर्स को, बैकग्राउंड के कलर्स को, टेक्स्ट को, ग्राफिक एक्सेंट्स को उन पर्टिकुलर स्लाइड्स पर. Now when building a presentation, users can set the slide timing so that the presentation automatically displays the next slide after a preset delay. Presentation software allows you to apply special effects to the transition between slides. One slide, for example, might fade away as the next slide appears. Presentation software incorporates features such as checking spelling and formatting. So when you're working on your presentations, you have different options. You can set the slide timing as well. कि एक प्रीसेट टाइम पीरियड के बाद, एक स्पेसिफिक टाइम पीरियड के बाद आपकी नेक्स्ट स्लाइड डिस्प्ले हो जाती है. आप टाइम सेट कर सकते हो. प्रेजेंटेशन सॉफ्टवेयर की मदद से आप स्पेशल इफेक्ट्स अप्लाई कर सकते हो. से फॉर एग्जांपल एक स्लाइड फेड अवे हो जाती है एज द नेक्स्ट स्लाइड अपीयर्स, सो यू आर अप्लाइंग स्पेशल इफेक्ट्स टू द ट्रांजिशन बिटवीन स्लाइड्स. इसी तरह से प्रेजेंटेशन सॉफ्टवेयर में आपके पास स्पेलिंग को चेक करने के लिए, फॉर्मेटिंग को चेक करने के लिए भी फीचर्स अवेलेबल होते हैं. सो प्रेजेंटेशन सॉफ्टवेयर की मदद से आप प्रेजेंटेशंस डेवलप कर रहे होते हो, आप प्रेजेंटेशंस पे काम कर रहे होते हो और इन प्रेजेंटेशन से आप अपने आइडियाज को, मैसेजेस को, इंफॉर्मेशन को कम्युनिकेट कर रहे होते हो टू अ ग्रुप ऑफ पीपल और ये आप लार्ज मॉनिटर या प्रोजेक्शन स्क्रीन पर अपनी प्रेजेंटेशंस को डिस्प्ले कर रहे होते हो, स्लाइड्स को डिस्प्ले कर रहे होते हो. नाउ डेटाबेस सॉफ्टवेयर. A database is a collection of data organized in a manner that allows access, retrieval, and use of that data. In a manual database, you might record data on paper and store it in a filing cabinet. With a computerized database, the computer stores the data in an electronic format on the storage medium, such as a hard disk. Database software is application software that allows users to create, access, and manage a database. अब अगर हम सबसे पहले डेटाबेस की बात करें तो हम कहते हैं डेटाबेस आपके पास कलेक्शन ऑफ डेटा होता है जो आप इस तरह से ऑर्गेनाइज करते हैं कि आप उसको एक्सेस कर सकें, रिट्रीव कर सकें और यूज कर सकें.
सो कलेक्शन ऑफ डेटा को हम डेटाबेस कहते हैं और आप उस डेटाबेस को ऑर्गेनाइज करते हो ताकि आप उस डेटा को एक्सेस कर सको, रिट्रीव कर सको और यूज कर सको। जब हम मैनुअल डेटाबेस की बात करते हैं तो हम कहते हैं आप डेटा को ऑर्गेनाइज करते हो, रिकॉर्ड करते हो पेपर पर और फिर उसको स्टोर करते हो फाइलिंग कैबिनेट्स के थ्रू। जब आप कंप्यूटराइज डेटाबेस की बात करते हैं तो आप कहते हैं कि कंप्यूटर स्टोर करता है डेटा को इलेक्ट्रॉनिक फॉर्मेट में स्टोरेज मीडियम पर, किसी भी स्पेसिफिक स्टोरेज मीडियम पर, जिस तरह से हार्ड डिस्क पर आप स्टोर कर रहे होते हैं। सो डेटाबेस सॉफ्टवेयर वो एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर है जो आपको अलाउ करता है कि आप क्रिएट कर सकें, एक्सेस कर सकें और मैनेज कर सकें डेटाबेस को। Using database software, you can add, change and delete data in a database, sort and retrieve data from the database, and create forms and reports using the data in the database. With most personal computer database programs, a database consists of a collection of tables organized in rows and columns. Each row, called a record, contains data about a given person, product, object or event. Each column, called a field, contains a specific category of data within a record. So, database software की मदद से आप ऐड कर सकते हो, चेंज कर सकते हो, डिलीट कर सकते हो डेटा को अपनी डेटाबेस में, आप सॉर्ट और रिट्रीव कर सकते हो डेटा को और आप क्रिएट कर सकते हो फॉर्म्स को और रिपोर्ट्स को अपने डेटा को यूज करते हुए। आपकी डेटाबेस में जो डेटा अवेलेबल है उसकी मदद से आप फॉर्म्स क्रिएट कर सकते हैं, रिपोर्ट्स जनरेट कर सकते हैं। सो डेटाबेस सॉफ्टवेयर आपको अलाउ करता है कि आपकी तमाम एक्टिविटीज परफॉर्म कर सकते हैं। नाउ विद मोस्ट पर्सनल कंप्यूटर डेटाबेस प्रोग्राम्स, डेटाबेस आपके पास कलेक्शन ऑफ टेबल्स होता है जो रोज और कॉलम्स में ऑर्गेनाइज्ड होते हैं। रो को हम रिकॉर्ड कहते हैं और इसमें हमारे पास किसी भी पर्सन, प्रोडक्ट, ऑब्जेक्ट या इवेंट के बारे में डेटा होता है। कॉलम जिसको हम फील्ड कहते हैं, इसमें डेटा की स्पेसिफिक कैटेगरी मौजूद होती है विद इन अ रिकॉर्ड। देन इज नोट टेकिंग सॉफ्टवेयर। Note taking software is application software that enables users to enter typed text, handwritten comments, drawings or sketches anywhere on a page and then save the page as part of a notebook. Users find note-taking software convenient during meetings, class lectures, conferences, in libraries and other settings. नोट टेकिंग सॉफ्टवेयर आपका वो एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर है जिससे आप नोट्स ले सकते हैं अपनी मीटिंग्स के दौरान, क्लास लेक्चर्स के दौरान, कॉन्फ्रेंसेस में, लाइब्रेरीज में और इसी तरह की सेटिंग्स में। जब आपने नोट्स लेने होते हैं तो नोट टेकिंग सॉफ्टवेयर आपको हेल्प आउट करता है कि आप टेक्स्ट एंटर कर सकते हो, कमेंट्स एंटर कर सकते हो, ड्राइंग्स, स्केचेस को एंटर कर सकते हो पेज पर और फिर आप उस पेज को सेव करते हो एज पार्ट ऑफ अ notebook. So it is because of note taking software. Then is project management software. Project management software allows a user to plan, schedule, track and analyze the events, resources and costs of a project. Project management software helps users manage project variables, allowing them to complete a project on time and within budget. प्रोजेक्ट मैनेजमेंट सॉफ्टवेयर आपका वो सॉफ्टवेयर होता है जो आपको अलाउ करता है कि आप प्लान कर सकें, स्केड्यूल कर सकें, ट्रैक कर सकें और एनालाइज कर सकें इवेंट्स को, रिसोर्सेज को और कॉस्ट को। अब ये जो तमाम चीजें हैं ये आपके प्रोजेक्ट से रेलेवेंट हैं कि आप प्रोजेक्ट को प्लान कर रहे होते हो, स्केड्यूल कर रहे होते हो, ट्रैक कर रहे होते हो, आप इवेंट्स, रिसोर्सेज और कॉस्ट को मैनेज कर रहे होते हो और प्रोजेक्ट मैनेजमेंट सॉफ्टवेयर आपको हेल्प करता है कि आप इन चीजों को मैनेज कर सकें। सो प्रोजेक्ट मैनेजमेंट सॉफ्टवेयर आपको हेल्प करता है कि आप अपने प्रोजेक्ट को टाइमली और बजट में रहते हुए कंप्लीट कर सकते हैं। There is enterprise computing software. A large organization, commonly referred to as an enterprise, requires special computing solutions because of its size and large geographical distribution. A typical enterprise consists of a wide variety of departments, centers, and divisions collectively known as functional units. Nearly every enterprise has the following functional units: human resources, accounting and finance,
engineering or product development, manufacturing, marketing, sales, distribution, customer service, and information technology. Each of these functional units has specialized software requirements. हमने एंटरप्राइज कंप्यूटिंग के बारे में बात की अपने प्रीवियस लेक्चर्स में भी. हम कहते हैं लार्ज ऑर्गेनाइजेशन जिनको हम एंटरप्राइज कह रहे होते हैं, इनके डिफरेंट फंक्शनल यूनिट्स होते हैं, इनके डिफरेंट डिपार्टमेंट्स होते हैं और इन डिपार्टमेंट्स की डिफरेंट सॉफ्टवेयर रिक्वायरमेंट्स हो सकती हैं. इन डिपार्टमेंट्स में आपके ह्यूमन रिसोर्स, अकाउंटिंग, फाइनेंस, इंजीनियरिंग, मैन्युफैक्चरिंग, मार्केटिंग, सेल्स, डिस्ट्रीब्यूशन, कस्टमर सर्विस और इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी आईटी डिपार्टमेंट हो सकते हैं और हर डिपार्टमेंट की डिफरेंट सॉफ्टवेयर रिक्वायरमेंट्स होती हैं. सो एंटरप्राइज कंप्यूटिंग सॉफ्टवेयर आपको हेल्प आउट कर रहे होते हैं कि आप डिफरेंट फंक्शनल यूनिट्स, डिफरेंट डिपार्टमेंट्स की रिक्वायरमेंट्स के अकॉर्डिंग सॉफ्टवेयर डेवलप करते हैं और उन डिपार्टमेंट्स की नीड्स को फुलफिल किया जाता है. सो ऑर्गेनाइजेशंस के पर्सपेक्टिव में एंटरप्राइज कंप्यूटिंग सॉफ्टवेयर बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले करते हैं. नाउ मूविंग ऑनवर्ड्स, अब हम बात करेंगे ग्राफिक्स एंड मल्टीमीडिया सॉफ्टवेयर्स के बारे में. In addition to business software, many people work with software designed specifically for their field of work. Power users such as engineers, architects, desktop publishers, and graphic artists often use sophisticated software that allows them to work with graphics and multimedia. अब बिजनेस सॉफ्टवेयर्स के अलावा हमारे पास डिफरेंट सॉफ्टवेयर्स होते हैं जो डिफरेंट फील्ड ऑफ वर्क से रेलेवेंट होते हैं. यहाँ पर हम बात कर रहे हैं पावर यूजर्स की, जैसे इंजीनियर्स, आर्किटेक्ट्स, डेस्कटॉप पब्लिशर्स और ग्राफिक आर्टिस्ट सोफिस्टिकेटेड सॉफ्टवेयर्स यूज कर रहे होते हैं जो उनको हेल्प आउट कर रहे होते हैं ग्राफिक्स और मल्टीमीडिया के साथ काम करने के लिए. सो दे हैव देयर ओन सॉफ्टवेयर डिजाइन स्पेसिफिकली फॉर देयर फील्ड ऑफ वर्क. Here, first of all, we are going to discuss computer-aided design. Computer-aided design software is a sophisticated type of application software that assists a professional user in creating engineering, architectural, and scientific designs. For example, engineers create design plans for vehicles and security systems. Architects design building structures and floor plans. Scientists design drawing of molecular structures. अब जब हम कंप्यूटर एडेड डिजाइन सॉफ्टवेयर की बात करते हैं तो हम कहते हैं ये एक सोफिस्टिकेटेड एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर है जो प्रोफेशनल यूजर्स को असिस्ट कर रहा होता है, हेल्प कर रहा होता है कि इंजीनियरिंग, आर्किटेक्चरल और साइंटिफिक डिजाइंस को वो क्रिएट कर सकते हैं. इसकी मदद से इंजीनियर्स क्रिएट कर सकते हैं डिजाइन प्लान्स फॉर व्हीकल्स एंड सिक्योरिटी सिस्टम्स. आपके आर्किटेक्ट्स डिजाइन कर रहे होते हैं बिल्डिंग स्ट्रक्चर्स को और फ्लोर प्लान्स को. साइंटिस्ट डिजाइन कर रहे होते हैं मॉलिक्यूलर स्ट्रक्चर्स को. सो ये कंप्यूटर एडेड डिजाइन सॉफ्टवेयर हेल्प आउट कर रहा होता है इन प्रोफेशनल यूजर्स को कि वो डिफरेंट डिजाइन्स क्रिएट करते हैं इस सॉफ्टवेयर की मदद से. नाउ वीडियो एंड ऑडियो एडिटिंग सॉफ्टवेयर. Video editing software allows professionals to modify a segment of a video called a clip. For example, users can reduce the length of a video clip, reorder a series of clips, or add special effects. Video editing software typically includes audio editing capabilities. Audio editing software lets users modify audio clips, produce studio quality soundtracks, and add audio to video clips. अब प्रोफेशनल यूजर्स के लिए वीडियो और ऑडियो एडिटिंग सॉफ्टवेयर्स अवेलेबल होते हैं. वीडियो एडिटिंग सॉफ्टवेयर प्रोफेशनल्स को अलाउ करता है, प्रोफेशनल्स को हेल्प करता है कि वो मॉडिफाई कर सकते हैं वीडियोस को. वीडियो के डिफरेंट सेगमेंट्स को मॉडिफाई किया जा सकता है जिसको हम वीडियो क्लिप बोलते हैं. फॉर एग्जाम्पल, आपके यूजर्स, आपके जो प्रोफेशनल यूजर्स हैं, दे कैन रिड्यूस द लेंथ ऑफ अ वीडियो. आप वीडियो की लेंथ को कम कर सकते हो, रीऑर्डर कर सकते हो सीरीज ऑफ क्लिप्स को, स्पेशल इफेक्ट्स डाल सकते हो. आपके वीडियो एडिटिंग सॉफ्टवेयर्स में ऑडियो एडिटिंग कैपेबिलिटीज भी शामिल होती हैं. ऑडियो एडिटिंग सॉफ्टवेयर्स अलाउ करती हैं आपको कि आप ऑडियो क्लिप्स को मॉडिफाई कर सको, स्टूडियो क्वालिटी साउंड ट्रैक्स प्रोड्यूस कर सकते हैं आप, और ऑडियो ऐड कर सकते हैं वीडियो क्लिप्स में.
सो ये तमाम चीज़ें आप वीडियो एंड ऑडियो एडिटिंग सॉफ्टवेयर की मदद से कर रहे होते हैं। सो फॉर द प्रोफेशनल्स जो हम वीडियो और ऑडियो एडिटिंग सॉफ्टवेयर यूज करते हैं, दे आर वेरी हेल्पफुल फॉर देम फॉर एडिटिंग वीडियो एंड ऑडियो क्लिप्स। Then is software for home, personal and educational use. There are certain softwares which are for home, personal and educational use. Here we can see personal finance software, legal software, text preparation software, paint image editing software for personal use, video and audio editing software for personal use. हमारे पास कुछ सॉफ्टवेयर होम, पर्सनल और एजुकेशनल यूज के लिए होते हैं, जिनमें पर्सनल फाइनेंस सॉफ्टवेयर है कि आप अपनी पर्सनल फाइनेंस को मैनेज कर सकते हो। पर्सनल फाइनेंस सॉफ्टवेयर के थ्रू लीगल सॉफ्टवेयर्स आपके पास मौजूद होते हैं। टेक्स्ट प्रिपरेशन सॉफ्टवेयर्स होते हैं जिससे आप अपने टेक्स्ट रिलेटेड इश्यूज और टेक्स्ट रिलेटेड जो डॉक्यूमेंटेशन और इंफॉर्मेशन है उसको मेंटेन करते हो। पेंट इमेज एडिटिंग सॉफ्टवेयर होते हैं कि आप जिनसे आप अपने इमेजेस को एडिट कर सकते हो, एंड दीज आर फॉर पर्सनल यूज, दीज आर वेरी इजी टू यूज। वीडियो और ऑडियो एडिटिंग सॉफ्टवेयर होते हैं, हमने प्रोफेशनल के बारे में बात की अभी, लेकिन यहाँ पर पर्सनल यूज के लिए भी आपको वीडियो और ऑडियो एडिटिंग सॉफ्टवेयर अवेलेबल होते हैं। सो दीज सॉफ्टवेयर आर स्पेसिफिकली फॉर पर्सनल यूज। अगर हम रेफरेंस एंड एजुकेशनल सॉफ्टवेयर की बात करें तो रेफरेंस सॉफ्टवेयर प्रोवाइड्स वैल्यूएबल एंड थॉरो इंफॉर्मेशन फॉर ऑल इंडिविजुअल्स। Popular reference software includes encyclopedias, dictionaries, and health medical guides. Educational software teaches a particular skill. Computer-based training is a type of education in which students learn by using and completing exercises with instructional software. अब जब हम रेफरेंस और एजुकेशनल सॉफ्टवेयर की बात करते हैं तो हम कहते हैं कि रेफरेंस सॉफ्टवेयर आपको वैल्यूएबल और थॉरो इंफॉर्मेशन प्रोवाइड करते हैं। इनमें आपकी इंसाइक्लोपीडियाज, डिक्शनरीज और हेल्थ मेडिकल गाइड्स शामिल हैं। These softwares are important source of valuable information for all individuals. Educational software, these are used for teaching a particular skill. इन द सेम वे जब हम कंप्यूटर बेस्ड ट्रेनिंग की बात करते हैं तो हम कहते हैं ये वो एजुकेशन है जिसमें आप एक्सरसाइजेस को कंप्लीट करके आपके पास इंस्ट्रक्शनल सॉफ्टवेयर्स होते हैं जिनकी मदद से आप एक्सरसाइजेस को कंप्लीट करते हैं और उसकी मदद से आप ट्रेनिंग ले रहे होते हैं। सो दीज आर कंप्यूटर बेस्ड ट्रेनिंग्स। सो रेफरेंस एंड एजुकेशनल सॉफ्टवेयर्स आर आल्सो इंपॉर्टेंट। देन इज एंटरटेनमेंट सॉफ्टवेयर। Entertainment software for personal computers include interactive games, videos, and other programs designed to support a hobby or provide amusement and enjoyment. For example, you might use entertainment software to play games individually or with others online. Many games are available as web applications, allowing you to play individually or with other online players. सो एंटरटेनमेंट सॉफ्टवेयर्स में आपके पास इंटरैक्टिव गेम्स, वीडियोस और वो प्रोग्राम्स शामिल हैं जो आपकी किसी हॉबी को सपोर्ट कर रहे होते हैं। फॉर एग्जांपल, आप एंटरटेनमेंट सॉफ्टवेयर को यूज करते हो गेम्स के लिए, यू आर प्लेइंग दीज गेम्स इंडिविजुअली और यू आर प्लेइंग विद अदर ऑनलाइन प्लेयर्स। सो मेनी गेम्स आर अवेलेबल एज वेब एप्लीकेशंस और आप इनको इंडिविजुअली भी खेल सकते हैं और दूसरे ऑनलाइन प्लेयर्स के साथ भी आप इंटरैक्ट कर रहे होते हैं। So this is example of entertainment software. So आज हमने कुछ एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर्स के बारे में बात की। प्रीवियस लेक्चर में भी हमने एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर के बारे में बात की थी। आज हमने डिफरेंट एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर्स के बारे में बात की। हमने प्रेजेंटेशन सॉफ्टवेयर के बारे में बात की, डेटाबेस सॉफ्टवेयर के बारे में बात की। प्रेजेंटेशन सॉफ्टवेयर की मदद से आप प्रेजेंटेशंस डेवलप करते हैं, आप रियल एड्स क्रिएट कर रहे होते हो, स्लाइड्स आपको हेल्प आउट कर रही होती हैं कि आप अपनी इंफॉर्मेशन और मैसेजेस को कम्युनिकेट कर सको टू अ लार्ज नंबर ऑफ पीपल विद द हेल्प ऑफ रियल एड्स। डेटाबेस सॉफ्टवेयर के बारे में हमने बात की। हमने कहा कि डेटाबेस सॉफ्टवेयर आपको हेल्प करता है कि आप अपने डाटा को स्टोर कर सको, रिट्रीव कर सको और अपने डाटा को एक्सेस कर सको और डेटाबेस डेवलप कर सको सो दैट आप अपने डाटा को सेव कर सकते हैं विद द हेल्प ऑफ डेटाबेस सॉफ्टवेयर।
नोट टेकिंग सॉफ्टवेयर की हमने बात की, इट हेल्प्स यू इन टेकिंग नोट्स। प्रोजेक्ट मैनेजमेंट सॉफ्टवेयर के बारे में हमने बात की कि प्रोजेक्ट मैनेजमेंट सॉफ्टवेयर की वजह से आप अपनी प्रोजेक्ट एक्टिविटीज को इफेक्टिवली परस्यू कर सकते हैं। एंटरप्राइज कंप्यूटिंग सॉफ्टवेयर के बारे में हमने बात की कि एंटरप्राइज कंप्यूटिंग सॉफ्टवेयर आपको हेल्प आउट कर रहा होता है कि किस तरह से आपके डिफरेंट फंक्शनल यूनिट्स की जो कंप्यूटिंग नीड्स होती हैं वो डिफरेंट होती हैं और आपको डिफरेंट सॉफ्टवेयर की ज़रूरत होती है। ग्राफिक्स एंड मल्टीमीडिया सॉफ्टवेयर की हमने बात की जिसमें हमने कंप्यूटर एडेड डिज़ाइन की बात की। वीडियो एंड ऑडियो एडिटिंग सॉफ्टवेयर की बात की, हमने कहा कि प्रोफेशनल्स डिफरेंट सॉफ्टवेयर यूज़ कर रहे होते हैं वीडियोज़ को, ऑडियो क्लिप्स को एडिट करने के लिए। इसी तरह से हमने सॉफ्टवेयर फॉर होम, पर्सनल और एजुकेशनल यूज़ की बात की कि हमारे पास डिफरेंट सॉफ्टवेयर होते हैं जो पर्सनल यूज़ के लिए होते हैं, जिसमें आपका टेक्स्ट प्रिपरेशन सॉफ्टवेयर हो सकता है, लीगल सॉफ्टवेयर हो सकता है। इसी तरह से हमने एजुकेशनल सॉफ्टवेयर की बात की कि देयर आर सर्टेन सॉफ्टवेयर जिनको हम रेफरेंस और एजुकेशनल सॉफ्टवेयर कह रहे हैं, वो आपको इंपॉर्टेंट इन्फॉर्मेशन, थॉरो इन्फॉर्मेशन प्रोवाइड कर रहे होते हैं। आप कंप्यूटर बेस्ड ट्रेनिंग भी गेन कर सकते हैं डिफरेंट सॉफ्टवेयर्स के थ्रू। इसी तरह से हमने एंटरटेनमेंट सॉफ्टवेयर के बारे में बात की कि देयर आर सर्टेन सॉफ्टवेयर्स जो आपकी एंटरटेनमेंट के लिए डिज़ाइन किए जाते हैं। ये डिफरेंट सॉफ्टवेयर्स थे, एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर जिनकी हमने बात की। So now we are very much clear about the idea कि एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर हमारे वो सॉफ्टवेयर होते हैं जो डिज़ाइन किए जाते हैं यूजर्स को असिस्ट करने के लिए उनके पर्सनल टास्क्स में। इस पर्सपेक्टिव में हमने बिजनेस सॉफ्टवेयर्स की भी बात की और हमने डिफरेंट सॉफ्टवेयर्स की बात की जो पर्सनल यूज के लिए हो सकते हैं। हमने उन सॉफ्टवेयर्स की बात की जो आपको हेल्प आउट कर रहे होते हैं, ग्राफिक्स और मल्टीमीडिया जो आपके टास्क होते हैं उनमें हेल्प आउट कर रहे होते हैं। सो देयर कैन बी डिफरेंट कैटेगरीज ऑफ दीज एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर। नाउ वी आर क्लियर अबाउट एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर कि एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर क्या होते हैं, इनके यूजेस क्या हैं। सो यहाँ पर हम अपने इस लेक्चर को एंड करते हैं। इंशाल्लाह नेक्स्ट लेक्चर में हम अपना नेक्स्ट टॉपिक डिस्कस करेंगे। थैंक यू एंड अल्लाह हाफिज।